Hey guys, welcome back to my channel. So today we will start chapter 2, Basic Concepts of Macroeconomics, Class 12 Economics, Lecture 1, Domestic Treaty and Normal Residence. So without wasting our time, we will just start the basic concepts of macroeconomics. So structure of macroeconomics. I will tell you firstly what we will do in this macroeconomics and when we will start our ED means Indian Economic Development chapter 4. So I will tell you, see, in macroeconomics syllabus there are total 6 units. So there are total 6 units. So we have divided into 12 chapters so that we can understand more in better form. Okay. So see how we have divided it. See, macroeconomics syllabus 12 chapter. So we have done introduction to macroeconomics. So we have done introduction to macroeconomics yesterday. So now the two basic chapter 2 is the basic concept that we are going to study now. Now then national income aggregate, then we will study chapter 3, that is national income aggregates. Okay, then we will study manufacturing measurement of NI, national income. National income का measurement क्या है? तो we will study measurement of national income. Then we will study fifth chapter, that is money, and then we will start our banking, that is chapter 6, and then I think so then I will move to Indian economic development. I will tell you, but yeah, there means we will study 5 or 6 chapter and then we will move to IED, Indian economic development, on after doing 5th or 6th chapter. Okay, now this much is clear. Then it's chapter when then we will move to IIT. So you can see the further chapters are chapter 7, that is aggregate demand and supply, 8 income determination, 9 excess and deficient demand, then 10 government budget obviously, then 11th is foreign exchange, and then 12th is balance of payment. Okay, so this 12th chapter I have distributed, means in the refresher it's distributed, so we are doing like that only. So now we will study domestic territory first. So see, as you can see, this is our India's map. Okay, as you can see now, I think so. Yeah, so this is an India's map. This is an India's map. Wait for a minute. Yeah. Okay, now if see, this is our India and this full is our India, and so this is our India. Okay, now I think this is how. Wait for a minute. So this is India. Okay, the graph is little bit. So this is India. Now I will see the we are going to study the territory, domestic territory, Indian domestic territory. Okay, so we are going to study the Indian domestic territory. Now, wherever I am putting the arrow, see here, here, here. This is our India's domestic. So this thing is the India's domestic territory. Wherever I am showing the arrow, this full is India's domestic territory. Now, this full is India's domestic territory. Now, what we can see that, see now, up here is Pakistan in this side. As you can see, here is Pakistan and here is China. Okay. So now the Pakistan and China is not the Indian domestic territory. Okay. Now wherever I have shown the arrow to you is the India's domestic territory. Clear? Now
I will change the color of this, and yeah. So now, as you can see, this is Bay of Bengal and this is Arabian Sea. है ना? नहीं, this is okay. So this is Bay of Bengal and this is Arabian Sea. Okay. So now till here, till here, it's 12 nautical miles. We have total 12 nautical miles. We have total. Wait, I will write nautical miles. So we have total 12 nautical miles. Now, so this is also the Indian domestic territory. Understood? Now, if the ship is there in the if the ship is there in the water, international water bodies, if the ship is there in the international water bodies, so if the ship is if अगर उस शिप को देखो, मैं हिंदी में समझाती हूँ, उस शिप को किसी कोई इंडियन चला रहा है और वो शिप इंडिया की है, तो फिर दैट इज इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि वो शिप कोई इंडियन चला रहा है. कौन चला रहा है? कोई इंडियन चला रहा है, तो दैट इज इंडियंस डोमेस्टिक टेरिटरी. ओके. नाउ ये सारी जो होती है इंडियंस डोमेस्टिक टेरिटरी, उनको ये मतलब आम भाषा में अगर मैं इसको बोलूँ तो पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री. ये एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या फ्रंटियर बोल लो सर, तो पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री. एक पॉलिटिकल फ्रंटियर बताता है कि ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है. ठीक है, तो ये ऐसे बताता है. अंडरस्टूड? नाउ वी विल मूव ऑन टू स्टडी नाउ a domestic territory, economic territory. In layman's language, in layman's language मतलब ordinary language या आप लोगों की भाषा में हिंदी में अगर बोले जो आप लोग अच्छे से समझ पाए, तो हम इसको ये बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री. कि ये एक पॉलिटिकल फ्रंटियर है ऑफ द कंट्री, कि हम उसको देख सकते हैं कि हाँ यहाँ तक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, मीन्स यहाँ तक इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी की हमें आइडिया लग जाए एक बार. तो हाउएवर इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग इफ इट हैज़ अ वाइडर सेंस, मतलब जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में देखेंगे तो ये बहुत वाइडर सेंस में, इससे भी बड़ा है. ठीक है, ये तो बस अब देखो को डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूएन, यूनाइटेड नेशन, अकॉर्डिंग टू यूएन, it is the geographical territory administered by a government within which persons, good and capital circulate freely. देखो, अगर मैं इसका कोर डेफिनेशन बताऊँ कि इसका जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसका कोर डेफिनेशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू यूएन हम ये बोलते हैं कि जो जोग्राफिकल टेरिटरी है, जो अपनी देश की बाउंड्री है, जो जोग्राफिकल टेरिटरी है, जो जियोग्राफिकल टेरिटरी अमेंडेड बाय किसने बनाई है? सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विथ जहाँ पर्सन जो होता है, पर्सन रह सकता है या गुड्स एंड कैपिटल आ जा सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है फ्रीली, तो उससे हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी. अब मैं अगर आपको बताऊँ, आपने देखा होगा कि प्लेन्स, तो प्लेन्स उड़ते हैं, तो प्लेन्स उड़ते हैं ना, अब सॉरी ऑब्वियसली प्लेन्स उड़ते हैं, सॉरी. तो अब आपने देखा होगा कि दूसरे देश के प्लेन आप उसमें आपकी कंट्री से जा रहे हैं या दूसरे देश के प्लेन्स उड़ रहे हैं, ऐसे आपकी बिल्डिंग से जा रहे हैं या कहीं से भी जा रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि जो वो उस प्लेन, जो अगर वो प्लेन इंडिया का है तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है, कि वो जो प्लेन है वो भी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है, मतलब उसमें हमारा अधिकार है और किसी का नहीं. अब अगर दूसरे देश का जो प्लेन है वो हमारे यहाँ आता है, उड़ता है, तो उसके पास परमिशन होनी चाहिए.
ऑब्वियसली परमिशन, तो ये किस देश किसका डोमेस्टिक टेरिटरी है? उस देश का डोमेस्टिक टेरिटरी है जो जिस जिस देश से वो आया है, उस देश का वो डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। इंडिया का नहीं है, वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। हाँ, अगर ये हो सकता है कि नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड कि क्या समझाया कि जो ये जो मैप है वो तो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है, और जो 12 नॉटिकल माइल्स है वो भी है। पर अगर जो शिप, जैसे कोई वो आता है ना, फिश को पकड़ते हैं लोग, तो इंटरनेशनल बॉडीज में चले जाते हैं, तो वो है वो भी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी है, क्योंकि उसको भी कोई इंडियन ही चला रहा है। तो इंडियन ही चला रहा है, मतलब इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है वो भी। इतना समझ में आया? नाउ लेट्स मूव ऑन। क्या क्या इंक्लूडेड है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है? अब देखो, शिप्स एंड आर्किटेक्ट एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, एग्जाम्पल एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान। अब देखो, ये इंक्लूडेड है कि भाई टेरिटरी, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी हम इसको बोलेंगे कि जब हमारा जो एयरक्राफ्ट है या हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो जापान और रशिया से जा रहा है, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि उसको उड़ा कौन रहा है? उड़ा उसको इंडियन रहा है, ठीक है। तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। अगर देखो इसमें क्या लिखा है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड, अगर वो ओन किया जा रहा है और ऑपरेटेड है किसी नॉर्मल रेसिडेंस। अब देखो, नॉर्मल रेसिडेंस मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी, तो अभी उस वर्ड को अपने दिमाग में रखना, मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब ये देखो, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट क्यों बोला? क्योंकि जो शिप्स हैं वो भी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्योंकि जो लोग फिश पकड़ते हैं जो भी है, तो इंटरनेशनल, वो कभी इंटरनेशनल बॉडीज में बाहर चले जाते हैं, तो जो इंटरनेशनल बॉडीज में चले जाते हैं, पर उसको ओन एंड ऑपरेट कौन कर रहा है? ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन, तो इंडियन ऑपरेट एंड ओन कर रहा है, तो फिर वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी हो? वो हमारी इंडियंस की इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी हो, ठीक है। समझ में आया? अंडरस्टूड? हाँ, और अगर प्लेन की बात करें, तो प्लेन अगर रशिया या परमिशन है, रशिया और जापान से उड़ के जा रहा है, तो वो भी इंडियन यूनियन टेरिटरी, सॉरी यूनियन क्यों बोल रही हूँ, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है, नॉट यूनियन, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है, क्या है? इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, वो भी एक इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है। अंडरस्टूड? क्लियर? उसमें कोई जापान का आदमी नहीं जा सकता, मतलब कोई ऐसे जैसे रेड मारते हैं ना, तो वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है और उसके पास परमिशन है कि वो जापान से या रशिया से के ऊपर जा सकता है, उसके पास इतनी परमिशन है। तो वो किस ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट, मतलब इंडियन उसे ऑपरेट कर रहा है और ओन कर रहा है, तो मतलब वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी और किसी की डोमेस्टिक टेरिटरी, वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, ओके, अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड, फिशिंग वेसल्स एंड रिग्स operated by residents in international water where they have exclusive rights of operation. ठीक है, the fishing vessels and rigs operated by residents in international waters where they have exclusive rights of operation. देखो, अब इंटरनेशनल बॉडीज होती है ना, वो आप पूछोगे कि इंटरनेशनल बॉडीज किसकी है? वो तो है ही नहीं कि इंटरनेशनल है, तो वो किसी की भी नहीं होती, किसी की भी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती इंटरनेशनल वाटर बॉडीज, ठीक है। तो अब ये इसमें बोला है फिशिंग वेसल्स, तो मैंने आपको वही है कि कोई बाहर चले जाए फिशिंग करते करते इंटरनेशनल बॉडी में, तो अगर उसको ऑपरेट कर रहा है इंडियन कोई ऑपरेट कर रहा है इंडियन, तो वो
कौन सी रेसिडेंस, तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या है वो, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, ऑपरेटेड और उसकी ही है, ओन्ड, तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है, ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स इन इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव, मतलब वेयर दे हैव, उनके पास राइट्स है ऑफ ऑपरेशन, वो कर सकते हैं क्योंकि वो किसी, जो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज है वो किसी की टेरिटरी में नहीं आती, ठीक है, इंटरनेशनल है वो, अंडरस्टूड। नाउ एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स, अब मैं बताऊंगी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स क्या होता है। अब देखो, हाँ फॉर एग्जांपल मेरी दीदी, फॉर एग्जांपल नहीं, हाँ मेरी दीदी कनाडा में है, ठीक है, अब उन्हें किसी चीज़ की, उनका पासपोर्ट या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, हेल्प की, कि पासपोर्ट उनका, मतलब उनका ये पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है कि उनको वापस अपने, मतलब इंडिया वापस आना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा हो रहा है, तो वो कहाँ जाएंगी, तो वो इंडियन एम्बेसी में जाएंगी। इंडियन एम्बेसी मतलब कि वो हेल्प करने के लिए होती है कि जो भी इंडियंस कनाडा में आया है, अमेरिका में आया है, श्रीलंका में आया है, जहाँ पे भी आए हैं, वो वहाँ पे जाकर हेल्प मांग सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब वैसे ही इंडिया में भी बहुत सारी एम्बेसीज है, इंडिया में बहुत सारी एम्बेसीज है, जैसे इंडिया के लोग, सॉरी यूएसए के लोग नहीं, जो बाहर से लोग आए, कोई से भी लोग आ सकते हैं, यूएसए के लोग आ जाए, कोई भी आ जाए विजिट करने को इंडिया में, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपनी एम्बेसीज में जाएंगे, जैसे इंडिया में यूएसए की अलग एम्बेसी होती है और श्रीलंका की अलग एम्बेसी हो गई, और अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग एम्बेसीज होती है, अलग अलग बिल्डिंग्स होती है, अलग अलग एम्बेसीज होती है, कि जिससे अगर कोई विजिट करने आ रहा है हमारे देश को, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुए तो वो उस देश की एम्बेसी में जा सकता है, ठीक है, उस देश की एम्बेसी में वो जा सकता है फॉर द हेल्प एंड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टू टेक आउट द सोल्यूशन, ठीक है, तो वो अपनी एम्बेसी में जा सकता है, ठीक है। तो और कॉन्सुलेट्स मतलब ये कॉन्सुलेट्स मतलब कि जैसे आपने सुना होगा, हाँ कॉन्सुलेट्स मतलब कि भाई क्या बोलूँ, कॉन्सुलेट्स भी इंडियन गवर्नमेंट ही वो करती है, जैसे मोदी जी को किसी से बात करनी है, या समझ लो कि फ्रांस और इंडिया को अच्छे रिलेशन, या हाँ रशिया और इंडिया को अच्छे रिलेशन बनाना है, वैसे तो बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, रशिया और इंडिया को अच्छे रिलेशंस करने हैं, क्या करने हैं, अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, तो वो अपना एक आदमी भेज देते हैं, जैसे IFS ऑफिसर, जैसे आपने सुना होगा ना दीपक वोरा, तो वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, तो मतलब कि वो अलग वहाँ पे जाता है, मतलब जहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ जाओ और वहाँ पे अच्छे रिलेशंस बनाओ इंडिया के साथ, तो जैसे फॉर एग्जांपल जापान ले लो, तो जापान और इंडिया का अच्छे रिलेशंस बिठाने के लिए वो उन्होंने हमने इंडिया से एक आदमी भेजा हुआ है, तो वो बात करेगा किससे, उनके जापान के लोग से, और ये मतलब पीएम मोदी और वो बात करेंगे आपस में, मतलब ये होता है कि रिलेशन गुड विद इंडिया मीन्स, जो इंडिया के रिलेशंस है ना, कोई भी जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल कुछ भी हो जाता है, इमरजेंसी हो गई या कोई लड़ाई कुछ भी हो गया, तो हम मदद मांग सकते हैं, तो इसलिए वो रखे जाते हैं कि अगर कोई भी अटैक हो गया और अगर आप हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है और उनके पास है, तो हम अच्छे रिलेशंस बिठा लेते हैं, कि हाँ अच्छे रिलेशन बिठा लेते हैं, तो जिससे वो भी सहमत होते हैं, हम भी सहमत होते हैं, कि मतलब अच्छे रिलेशंस इन द सेंस कि दोनों आपस में बातचीत करके, डील वील करके, अच्छे से सुलह करके अच्छा रिलेशन मिला, मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्टेट्स, ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन
टू स्टेट, अब आप ऐसे समझो, देखो कॉन्सुलेट्स मतलब कॉन्सुलेट्स यही होता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से काम करता है, जैसे IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, जो IFS है, तो उनको उसको उस आदमी को हम अलग अलग जगह भेज सकते हैं कि वो इंडिया की रिलेशंस हर सारी चीज़ों से, मतलब जापान से, रशिया से, USA से, जिससे भी इंडिया के रिलेशंस अच्छे बिठाए। और अगर किसी दो स्टेट्स को आपस में बात करनी हो तो वो करवा सके, ठीक है, तो वो करवा सके। इतना होता है बस कि अगर इस देश को इसके हमारे PM से बात करनी है तो वो IFS ऑफिसर बात करवा सकता है दोनों की, और अच्छे रिलेशंस बना सकता है, ठीक है। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब देखो, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मतलब अगर फॉर एग्जांपल समझो इंडिया में USA के लोग आए, वो अच्छे से रुक कर गए, विजिट करके गए, हर चीज़ करके गए, मिलिट्री आई, ठीक है। अब जहाँ पे वो रहेंगे उन्होंने कैंप वैम्प अपना सब कैंप वैम्प लगा के रखा होगा, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन रह रहा है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में USA के लोग रह रहे हैं, पर वो किसकी है? इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी है। और उन्होंने वहाँ पे एक बिल्डिंग इस्टेब्लिश कर दी कि वहाँ पे उनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स, मतलब उनके मिलिट्री के लोग रहेंगे। तो अब वो जब जाएंगे तो वो जगह तो वो तोड़ फाड़ तो जाएंगे नहीं, वही रहेगी वो जगह जहाँ थी। तो उसको बोलते हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, कि वो मिलिट्री को एस्टैब्लिश करके गए हैं, यहाँ पे एस्टैब्लिश करके फिर चले गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसी इन रशिया, मतलब इंडिया की एम्बेसी कहाँ है? रशिया में। तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। क्यों? क्योंकि इंडिया की एम्बेसी रशिया में है, मतलब कि जो इंडियन है वो रशिया भी जाते होंगे। जैसे आप लोग हो या मैं पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड गई, ठीक है। तो अब्रॉड गई और मुझे कुछ पासपोर्ट या किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कहाँ जाऊँगी? ऑब्वियसली इंडियन एम्बेसी में जाऊँगी। तो इंडियन एम्बेसी में मैं गई, वहाँ पे मैंने अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व करवाया और सल्यूशन निकलवाया। तो वो इंडियन यूनियन क्यों याद आ रहा है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। अंडरस्टूड? फोर्थ में, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर्स, the portion of the sea that a nation claims for economic use is also part of its domestic territory. अब जो 12 नॉटिकल माइल्स मैंने बताए, 12 नॉटिकल माइल्स जो मैंने बताए, वो जो वाटर है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, वो 12 नॉटिकल माइल्स में वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, ठीक है। वो सारा जो भी वाटर, वो जितना पानी है, जितना पोर्शन है, वो सब इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन नाउ। अब इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूजन्स, मतलब जो नहीं आता, जो मैंने आता है वो मैंने आपको बता दिया, अब जो नहीं आता वो मैं आपको बताती हूँ। इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में जो नहीं आता, अब वो देखो, फॉरेन एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स लोकेटेड इन इंडिया। अब जो ये एक्सक्लूजन है, ये नहीं आते। जो फॉरेन के लोग इंडिया में आकर, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यूएसए के लोग अगर इंडिया में विजिट करने आएंगे और अगर उन्हें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो अपनी देश की एम्बेसी में जा सकते हैं। तो फॉरेन एम्बेसी जो है वो हमारे देश की इंडियन टेरिटरी नहीं है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एंड कंसुलेट्स लोकेटेड इन इंडिया, जो भी कंसुलेट्स है, मतलब जो भी
लोग हैं, जैसे हमने इंडिया से वो IFS ऑफिसर को बाहर भेजा है, तो वैसे ही USA के लोग अपना अच्छा USA और इंडिया का अच्छा रिलेशन बनाने के लिए वो लोग अपने कॉन्सुलेट्स, अपने जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो उसको यहाँ भेजते हैं कि जिससे अपने रिलेशंस अच्छे बैठ सके, ठीक है, अपने रिलेशंस अच्छे बैठ सके। तो वो भी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो उनके देश की डोमेस्टिक टेरिटरी है। अंडरस्टूड? नाउ एग्जाम्पल, रशिया एम्बेसी इन दिल्ली। तो रशिया की एम्बेसी दिल्ली में है, तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रशिया की है और कोई रशियन ही चला रहा है, ठीक है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रशियन, नॉट इंडियन। तो इसको रशियन डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे, ठीक है, उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमारी नहीं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे UNO, WHO, WTO और GATT और ये सब जो है लोकेटेड विद इन दी बाउंड्री ऑफ, किसी बाउंड्री में है। हम जैसे UNO WHO हमारी ही इंडिया में ही है, पर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो किसी की भी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेशनल है। जैसे इंटरनेशनल वाटर बॉडीज किसी की टेरिटरी नहीं है, वैसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी की टेरिटरी नहीं है। अंडरस्टैंड? तो ये भी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, नहीं है, तो ये याद रखना। ओके, तो टेस्ट योरसेल्फ, पार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी, मैंने यस और नो लिखा हुआ है, इसको मैं रेस्वार दूँ थोड़ा, आओ चलो ऐसे समझते हैं। इंडियन कंपनी इन लंदन, हम देखो इंडिया की कंपनी लंदन जाकर, तो मैंने क्या बोला, कंपनी, इट्स कंपनी, ना कि एम्बेसी लिखा है, ना कि कॉन्सुलेट्स लिखा है, ना कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लिखा है। ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मतलब इंडिया की कंपनी कहाँ है? लंदन में कंपनी है, ना कि एम्बेसी है, ना कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, ना कि कॉन्सुलेट्स है, तो वो कंपनी है, तो वो फिर लंदन की ही टेरिटरी, वो डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, तो ये नहीं है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंडिया में है, इंडिया में, और इंडिया की ज़मीन पे ही है, इंडिया की ज़मीन, ऑफिस है ऑफिस, तो ये हाँ कि इंडिया की ज़मीन पे ही है, तो मतलब इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में, मतलब इंडिया की ज़मीन पे है ना, तो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडियन एम्बेसी जापान में, तो हाँ ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एम्बेसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और कॉन्सुलेट्स, ये याद रखना, ये तीन चीज़ें आ गई, मतलब ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है। अंडरस्टूड? नाउ रशियन एम्बेसी इन इंडिया, अब रशियन एम्बेसी इन इंडिया, तो भाई वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है इंडिया की, क्योंकि वो ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय रशियन, ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय रशियन, मतलब रशिया ही उसे चला रहा है, रशिया ही ऑपरेट कर रहा है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। इतना समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम रेडी टू सॉल्व इट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर थिंग। ओके, अब वो आप नॉर्मल रेसिडेंट्स पूछ रहे थे ना, अब वो मैं बताती हूँ नॉर्मल रेसिडेंट्स होता क्या है। नॉर्मल रेसिडेंट्स हम उसको बोलते हैं जो, या तो देखो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ पहले, नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजन में क्या डिफरेंस होता है, या तो वो यहाँ पे उसने बर्थ लिया है तो वो इंडियन सिटीजन है, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे उसने बर्थ लिया है तो वो क्या है, इंडियन सिटीजन। और अगर उसने दूसरी कंट्री में बर्थ लिया और वो इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है, तो उसको 5 साल तक इंडिया में ही रहना पड़ेगा, या उसको अप्लाई करना पड़ेगा PR के लिए, किसके लिए, परमानेंट रेसिडेंट के लिए, कि वो इस इंडिया का परमानेंट रेसिडेंट बन जाए, मतलब इस इंडिया का सिटीजन बन जाए। अगर उसने 5
अगर या तो वो यहाँ पे बर्थ लिया या उसने तो वो सिटीज़न कहलाएगा, या तो वो 5 years पूरा इंडिया में उसने बिताया, इंडिया में उसने खाया, इंडिया में उसे पिया है, इंडिया में उसने जॉब किया, इंडिया में सब किया है और 5 years वो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सिटीज़न। और तीसरा, और पीआर के लिए अप्लाई किया उसने, परमानेंट रेसिडेंट के लिए, कि मैं इंडिया में ही रहूँगा, तो परमानेंट रेसिडेंट के लिए उसने अप्लाई किया है, तो वो भी इंडिया का सिटीज़न है। कौन है? वो भी इंडिया का सिटीज़न है। ठीक है। अब नॉर्मल रेसिडेंट की बात करें तो नॉर्मल रेसिडेंट में 2 चीज़ें आती हैं। पहली इंडिविजुअल, हम लोग, दूसरा इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी आते हैं। अंडरस्टूड ना? कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंस में आप देखो, एक लड़का है, समझ लो एक लड़का है, इसका नाम ले लो रमेश, ठीक है, या नाम राजू, ठीक है, राजू ले लो। तो एक लड़का है जिसका नाम राजू है, वो चाय वाला है, फॉर एग्जाम्पल वो चाय वाला है। अब वो रहता तो कहाँ है? कानपुर में। कानपुर में रहता है, कानपुर में ही वो सब करता है, मतलब उसने सारी, मतलब वहाँ पे ही पीता है, वहाँ पे ही खाता है, वहीं पे ही जॉब करता है, वहाँ पे ही खर्च करता है, वहाँ पे उसका घर है, वहाँ पे ही रहता है, वहाँ पे ही सब करता है। तो क्या ये नॉर्मल रेसिडेंट है? हाँ, ये नॉर्मल रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि ये उसी जगह वहीं खा रहा है, वहीं जॉब कर रहा है, वहीं रहता है, और यहाँ पे खर्च कर रहा है, यहाँ पे जॉब कर रहा है, हर चीज़ यहीं कर रहा है, तो यस, ही इज़ द नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है। अब एक दूसरा लड़का है, मान लो जॉन सीना, ठीक है। अब वो मोर देन 1 year यहाँ पे रहा, ठीक है, यहाँ सब उसने खाया पिया, रहन सहन, उसने अपना खर्च जो भी पैसे दिए, मतलब एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन और सब इधर ही किया इंडिया में। तो क्या वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट है? बाहर से आया है वो, याद रखना, वो बाहर से आया है इंडिया में, मोर देन 1 year वो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ही उसने जॉब की है, यहाँ पे ही उसने एक्सपेंडिचर खर्च किया, अपना पैसे कमाए, उसको खर्च करके यहीं खाना खाता है, यहीं पीता है, यहीं रहता है, मोर देन 1 year। तो क्या वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट है? यस, वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि वो मोर देन 1 year लाए। अगर लेस देन 1 year होता तो नहीं, वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। अगर मोर देन 1 year है कि वो यहाँ रह रहा है, यहीं खा रहा है, यहीं पी रहा है, यहीं खर्च कर रहा है, यहीं जॉब कर रहा है, यहीं रह रहा है, तो वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट है, चाहे वो बाहर से भी आया हो। मोर देन 1 year अगर कोई रह रहा है यहाँ, तो वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट है। समझ में आया? अब देखो, अ नॉर्मल रेसिडेंट इज अ पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन who satisfies टू कंडीशन। इन दोनों कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाई करता है तभी वो इस जगह का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, नहीं तो नहीं। अब देखो, कंडीशन 1, ही और शी मस्ट रिसाइड्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर मोर देन 1 year। इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उसे 1 year तक, मोर देन 1 year तक रहना पड़ेगा। जैसे जॉन सीना, तो वो एक इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट है, जॉन सीना, तो क्योंकि उसने ये कंडीशन फुलफिल की कि वो मोर देन 1 year रहा इस इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में। कंडीशन 2, हिज और हर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मस्ट लाई इन दैट कंट्री। उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, उसका जो इंटरेस्ट है वो इसी कंट्री, इस टेरिटरी में ही रहना, इस कंट्री में ही रहना चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नहीं तो वो नहीं कहलाएगा इस देश का नॉर्मल रेसिडेंट। अंडरस्टूड? क्लियर? ये क्लियर हुआ? सिटीजन और नॉर्मल रेसिडेंट में आपको फ़र्क पड़ा? सिटीजन वो होता है जो यहाँ पे बर्थ ले रहा है या मोर 5 years यहाँ पे उसने रहा है,
या उसने अप्लाई किया है पीआर के लिए, परमानेंट रेसिडेंट के लिए, वो होता है सिटीजन। और नॉर्मल रेसिडेंट वो होते हैं जो यहाँ पे ही खाना पीना सब कर रहा है, मोर देन 1 ईयर बिता रहे हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट है और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस कंट्री से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वो होंगे इस कंट्री के, इस इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट्स। Understood? Now let's move. What happened to this? Now center of economic interest. इसको क्या हुआ? So center of economic interest क्या है? Center of economic interest. The term implies two things for the resident. मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि ये बता रहा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता क्या है, ये वो बता रहा है। तो इसमें आप ये देखो कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये जो टर्म है इम्प्लाइज टू थिंग्स फॉर द रेसिडेंट, दो चीज़ें रेसिडेंट को चाहिए होती है। पहला, द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब या तो वो रेसिडेंट लिव करे यहाँ पे या वो यहाँ पे लोकेट हो, मतलब कि उसका घर बाहर सब यहाँ पे ही हो, ठीक है। तो वो बोलेंगे इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड, मतलब या वो रहेगा या वो उसका घर यहाँ है या और वो दूसरी कंट्री विजिट करने गया है, तो फिर वो क्या हम बोलेंगे कि हाँ कि ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में है, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट है, ठीक है। फिर द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि वो यही अर्न कर रहा है, इसी कंट्री में अर्निंग कर रहा है, इसी कंट्री में स्पेंडिंग कर रहा है, इसी कंट्री में अक्यूमुलेशन कर रहा है फ्रॉम दैट लोकेशन, तो भाई फिर वो हम उसको बोल सकते हैं कि ही और शी इज़ अ नॉर्मल रेसिडेंट। एक्सक्लूजन्स फ्रॉम नॉर्मल रेसिडेंट, क्या एक्सक्लूजन है? फॉरेन टूरिस्ट, medical patients, seasonal workers, foreign staff of embassies and crew members of foreign vessels, ये सब नहीं होगी। क्या देखो, फॉरेन टूरिस्ट मतलब जो टूरिस्ट होते हैं जो 1-2 वीक्स के लिए यहाँ रहते हैं और फिर चले जाते हैं, वो लोग और उनका स्टाफ, जैसे कि एम्बेसीज, तो जो रशियन की एम्बेसीज इंडिया में है और वो उसको कोई रशियन ही चला रहा है, तो वो रशिया की इंडियन टेरिटरी है, सॉरी इंडियन के बोल रशिया डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट यहाँ का नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सब रशिया को दे रहा है, यहाँ को कुछ नहीं दे रहा है, यहाँ पे कुछ खा पी कुछ नहीं रहा, सब जो कमा रहा है वो रशिया पे के पास जा रहा है, जो कुछ हो रहा है वो सब रशिया के पास जा रहा है, रशिया से ही उसे खाना आ रहा है, तो फिर वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। फॉरेन वेसल्स जो भी होता है, फॉरेन व्हीकल्स ये सब भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं करवाएंगे। नॉर्मल रेसिडेंट मैंने बोला था ना इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल, तो या फॉरेन वेसल्स या जो भी है वो भी नहीं कहलाएगा कि जो टूरिस्ट है वो सब यहाँ पे विजिट करके चले गए, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, या ना कि वो यहाँ की सिटीजन है। फॉरेन स्टाफ भी नहीं, वर्कर्स जो बाहर से आते हैं तो फिर वो भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कराएंगे। क्रू मेंबर्स, अगर वो फॉरेन से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं और मोर देन 1 ईयर उन्होंने रहा है, क्रू मेंबर्स जो मोर देन 1 ईयर रहे हैं यहाँ पर, तो हाँ उनको नॉर्मल रेसिडेंट बोल सकते हैं। पर क्रू मेंबर्स यहाँ पे 1-2 क्रू मेंबर्स ऑब्वियसली नहीं रहते हैं, तो इसलिए हम उनको नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बोलते। इतना समझ में आया? अब सिटीजनशिप वर्सेस रेसिडेंसी के बीच में मैं आपको कंपैरिजन बताती हूँ। तो सिटीजनशिप मैंने आपको बताया था कि बर्थ, तो सिटीजनशिप मैंने क्लियर कर दिया था कि सिटीजनशिप और रेसिडेंसी का क्या पढ़ना, जब हम लिटरली पढ़ लेते हैं बस क्या लिखा है। तो नेचर, इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ और लीगल प्रोविजंस। अगर उस इंसान ने यहाँ पे बर्थ लिया है तो ऑब्वियसली वो यहाँ का सिटीजन है, या मैंने आपको ये बताया था कि या तो उसने अप्लाई किया है पीआर के लिए, परमानेंट रेसिडेंस के लिए, या तो उसने क्या किया है, या तो उसने
यहाँ पे वो 5 years रहा है, ठीक है, तो वो सिटीजन है। रेसिडेंस अगर मैं बोलूँ, इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम उसको रेसिडेंस बोल सकते हैं। अगर हम रेसिडेंस हम इस तब बोलेंगे इफ़ ही और शी स्टेड हेयर फॉर मोर देन 1 year and he means a person resides for 1 year and has economic interest here only, so he or she can be known as normal resident. Residency changes and as the person moves for work and stay. रेसिडेंस चेंज हो जाता है। अगर आप बोलो कि यहाँ से मैं अब्रॉड गई आगे की स्टडीज़ करने के लिए, तो मैं अब्रॉड गई आगे की स्टडीज़ करने और वहाँ पे मैं 1 year पूरा रह कर आई, मैं वहाँ पर पूरा 1 year रह के आई, वही खाना पीना सब वही हो रहा है, तो मैं वहाँ की क्या कहलाऊँगी, मैं वहाँ की नॉर्मल रेसिडेंट कहलाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे स्टे करके आई हूँ 1 year, ठीक है, वहाँ पे रहन सहन, वहाँ पे काम करती हूँ, वहाँ पे एक्सपेंडिचर खर्च करती हूँ, वहाँ पे एग्जाम्पल एन इंडियन वर्किंग इन दी USA फॉर 2 years। अब वो उसने मोर देन 1 year USA में बिताया, अब वो यहाँ का सिटीजन ऑफ इंडिया है, क्योंकि वो यहाँ पे बर्थ लिया है उसने, सिटीजन ऑफ इंडिया है, पर वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का है, USA, क्योंकि उसने मोर देन 1 year वो USA में रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ कि मेरी दीदी मोर देन 1 year कनाडा में रही है, तो वो वहाँ मैं बोलूँ कि मेरी दीदी मोर देन 1 year कनाडा में रही है, तो वो पैदा वो इंडिया में है, द सिटीजन ऑफ इंडिया बट द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कनाडा। कनाडा की वो नॉर्मल रेसिडेंट है, इंडिया की वो सिटीजन है। अंडरस्टूड? नाउ इफ वी विल मूव फॉरवर्ड, नॉर्मल रेसिडेंट टेस्ट योरसेल्फ। नाउ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आर द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, यस और नो बताना। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन USA। अब जो इंडिया के ऑफिशियल्स है वो इंडिया की एम्बेसी USA में चला रहे, तो क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स है? हाँ, क्योंकि वो नॉर्मल रेसिडेंट्स इसलिए क्योंकि वो पैदा यहाँ हुए हैं, वो खाना वाना सब यहीं खाते हैं, बस वो उन्होंने एम्बेसी जो इंडिया की एम्बेसी है वो कहाँ खोली है, USA में खोली है। आते तो वही है ना, इंडिया ही चला रहा है वो, जो इंडियन एम्बेसी वो इंडियन ही चला रहा है, तो इसलिए हाँ। जापानीज टूरिस्ट वोटिंग इंडिया फॉर 2 months विजिटिंग इंडिया, तो जो जापानीज के टूरिस्ट है वो इंडिया में विजिट करने के लिए आए सिर्फ 2 months के लिए, तो ये मोर देन 1 year तो नहीं रुक रहा है, तो नहीं, he or she means Japanese are not the normal resident of India. Now, India's working in WHO office located in India. अब जो WHO ऑफिस है वो इंडिया में ही लोकेटेड है और इंडियंस ही वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ का जो इंडियंस ही वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वो इंडियंस है वो यहाँ पे 1 year से ज़्यादा रह रहे हैं, तो फिर वो ये हम नॉर्मल रेसिडेंट है। फॉरेन वर्किंग इन WHO ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया, तो नहीं, फॉरेनर्स अगर वर्क कर रहे हैं इंडिया में WHO में, तो फिर वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर क्या लिखा है, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर हज पिलग्रिम, तो पिलग्रिमेज, तो इंडियन मुस्लिम्स किसी को वर्शिप करने जा रहे हैं कहीं, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि वो कहीं घूमने जा रहे हैं, मतलब कहीं किसी को वर्शिप करने जा रहे हैं, भगवान को कुछ देने जा रहे हैं, कुछ सेवा करने जा रहे हैं, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, यस, क्योंकि वो रहने तो वापस यहीं आएंगे ना। अब फॉरेन वर्कर्स विजिटिंग इंडिया फॉर अ शॉर्ट प्रोजेक्ट, फॉरेन वर्कर्स इंडिया में आए हैं कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट करने के लिए, तो नहीं, वो भी इंडिया के रेसिडेंट नहीं, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। अब आता है फैक्टर वर्सेस ट्रांसफर इनकम।
तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच में मैं आपको डिफ्रेंशिएट बताती हूँ। फैक्टर इनकम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर इनकम मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। तो लैंड, लेबर, तो हम फैक्टर किसको बोले? देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और ये सब, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है। तो देखो, लैंड से रेंट मिल रहा है, लैंड दिए हमें किसी को, तो वो हमें रेंट प्रोवाइड कर रहा है। लेबर से हमें मिल रहा है वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट और ह्यूमन कैपिटल को प्रॉफिट, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल को प्रॉफिट। अब ये सब अर्न कर रहा है, मतलब अपना खून पसीना ये सब बहाकर ये लोग अर्न कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम। क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम। अब आपको आपके पेरेंट्स पॉकेट मनी दे रहे हैं 500 रुपये, या जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं तो उनकी पेंशन आती है, तो वो लॉटरी, जो लोग अनएम्प्लॉयड होता है तो गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, स्कॉलरशिप मिलती है, गिफ्ट मिलते हैं। तो ये सब जो होते हैं ना, ये फालतू होते हैं, मतलब ये आपने खून पसीना बहाकर तो लाए नहीं हो, खून पसीना बहाकर तो पैसे कमाए नहीं है, आपको ऐसे फ्री के पैसे मिल रहे हैं, मतलब बिना मेहनत करे आपको पैसे मिल रहा है, तो ये फालतू होते हैं। इनको मतलब हराम के पैसे बोलते हैं, हराम के पैसे। खून पसीने अब आपको पॉकेट मनी मिल रही है तो आप उसके क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो? कुछ कर रहे हो मम्मी पापा के लिए? कर रहे हो? नहीं कर रहा है। वो आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं क्योंकि आप अपना खर्च संभाल सको, ठीक है। तो आप खून पसीना कुछ नहीं बहा रहे हो, मतलब सिर्फ आप मुफ्त के पैसे ले रहे हो, ऐसा बोलते हैं। जैसे लाडली लक्ष्मी बहना आती है, तो लाडली लक्ष्मी बहना में आप लोग कुछ कर रहे हो? नहीं, वो लोग, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है क्योंकि आप लाडली लक्ष्मी हो आप, तो गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, तो वो भी हराम का पैसा है। कोई कुछ काम तो कर नहीं रहे, वो भी हराम का पैसा है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर इनकम। जब जो फैक्टर इनकम है, ये जो फैक्टर इनकम है, ये इंक्लूड की जाती है ना, ये जो नेशनल इनकम हम पढ़ रहे हैं उसमें फैक्टर इनकम इंक्लूड की जाती है। ये जो हराम का पैसा है वो इंक्लूड नहीं किया जाता। तो नॉट इन, ये जो हराम का पैसा है मीन्स ट्रांसफर इनकम, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। द फैक्टर इनकम, जो खून पसीना मेहनत की कमाई है, दैट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अंडरस्टूड? नाउ फैक्टर इनकम में क्या होता है? देखो, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इनकम, पैसे हमें मिलते हैं जब या तो लैंड मतलब रेंट के फॉर्म में, लेबर मतलब वेजेस के फॉर्म में, कैपिटल मतलब इंटरेस्ट के फॉर्म में, और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट के फॉर्म में, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हमने अपना खून पसीना बहाकर उनको सर्विस दी, उनके लिए काम किया हमने, तो हमें बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो वो खून पसीने की कमाई है, तो वो फैक्टर इनकम में आता है। मीन्स इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, हम अर्न कर रहे हैं तो इट्स एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। ट्रांसफर इनकम हम उससे बोलते हैं जैसे हराम का पैसा, लॉटरी, पॉकेट मनी, जो ओल्ड पीपल के लिए पेंशन आती है उसको, और गिफ्ट्स, स्कॉलरशिप, इन सबको हराम का पैसा। मैं सिर्फ एग्जाम्पल में दे रही हूँ, कुछ वो मत सोचना, ठीक है। तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, तो ये हराम का पैसा है, ट्रांसफर ऑफ इनकम, है ना। तो इट्स नॉट एट ऑल इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, आप किसी को सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ ऐसा पैसा मिल रहा है बिना खून पसीने बहाए। इन रिटर्न यूनिलैटरल, एग्जाम्पल या तो गिफ्ट्स हो गए या तो स्कॉलरशिप मिल रही है, तो ये सब इट्स अ रिसेप्ट कॉन्सेप्ट, इट्स अ रिसेप्ट कॉन्सेप्ट कि भाई आप बैठे बैठे आपको पैसा मिल रहा है, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बैठ रहे हो, बैठे बैठे आपको पैसा आ रहा है, आन दो, आराम से जिंदगी है।
तो ये होता है ट्रांसफर इनकम। अंडरस्टैंड? ये एग्जाम्पल है, समझाने के लिए आपको ऐसे एग्जाम्पल्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है, कि आप रियल लाइफ से जब इसको कनेक्ट करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग से आपको समझ में आएगा। अंडरस्टूड? सो ये समझना कि फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, पर जो ट्रांसफर इनकम होती है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होती है, देखो, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बोल लो आप इसे, किसको बोलोगे? प्रॉब्लम ऑफ, इतना समझ में आया? अंडरस्टूड क्लियरली? नाउ सी द डिफरेंशिएशन बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम? मीन्स जो खून पसीने से हम जो कमाते हैं वो फैक्टर इनकम, और जो ट्रांसफर इनकम मतलब कि हराम का पैसा, जैसे पॉकेट मनी या स्कॉलरशिप या गिफ्ट, ये सब हराम के पैसे। सो हम वैसे देखें तो देखो, बेसिक्स मीनिंग इनकम रिसीव फॉर फैक्टर सर्विसेज। आपने किसी को इनकम, ठीक है, तो मतलब इनकम दी क्यों? क्योंकि फैक्टर सर्विसेज दी, मतलब कि उसने किसी के अंडर काम किया, ठीक है। ट्रांसफर इनकम हम बोलेंगे इनकम रिसीव विदाउट एनी सर्विस, किसी सर्विस आपने प्रोवाइड नहीं की तभी भी आपको पैसा मिला, वो ट्रांसफर इनकम। नेचर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड इट्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नाउ इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, इट्स एन अर्निंग कॉन्सेप्ट कि आप इसमें अर्न कर रहे हो, एंड इट्स अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट कि आप इसमें किसी को कोई सर्विस नहीं दे रहे, आपको मुफ्त का पैसा मिल रहा है बस, ठीक है। रिसिप्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एक्सेट्रा, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर एक्सेट्रा, और ये जनरली हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट, मतलब हाउस होल्ड्स को मिलते हैं या तो गवर्नमेंट देती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। सो एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब इसमें ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें थी। हाँ, अब मैं आपको बता रही थी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ये होती है, देखो, अब एक हस्बैंड और एक वाइफ है, ठीक है, एक हस्बैंड और एक वाइफ है। अब जो हस्बैंड, देखो फॉर एग्जांपल हस्बैंड कमा रहा है 1,00,000 रुपए, ठीक है, 1,00,000 रुपए वो कमा रहा है खून पसीने से, 1,00,000 रुपए वो कमा रहा है क्योंकि वो किसी को सर्विस दे रहा है, और वो सर्विस दे रहा है तो उसको इनकम मिल रही, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम फैक्टर इनकम। अब वो अपनी वाइफ को उसमें से 10K रुपीज़ अपने वो वाइफ को दे रहा है, उसके खर्च के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, मेकअप के लिए, ड्रेस के लिए, सब चीज़ के लिए वो अपना उसको पैसे दे रहा है अपने वाइफ को, और इसको क्या बोलेंगे कि मुफ्त का पैसा मिल रहा है, मतलब ट्रांसफ़र इनकम। वो वाइफ थोड़ी कोई काम कर रही है, तो ये ट्रांसफ़र इनकम, और इसको बोलेंगे हस्बैंड जो काम कर रहा है उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम। अब जो हम जोड़ेंगे किसको नेशनल इनकम में? हम जोड़ेंगे किसको? हस्बैंड के पैसे को, जो 1,00,000 रुपए। हम 10K को, ₹10K को नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमने पूरा हस्बैंड का जो पूरा अमाउंट था उसको जोड़ के उसी में से तो 1,00,000 में से तो वो ₹10K अपनी वाइफ को दे रहा है ना। अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर तो गलत ही आ जाएगा, तो डबल 2 बार काउंटिंग हो जाएगी। तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम सिर्फ फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, ठीक है। अंडरस्टूड? नाउ द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो बोर्ड यूनिट टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स में सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर इनकम मतलब मुफ्त का पैसा, तो एग्जाम्पल क्या है? सैलरी, बी रेंट, सी ओल्ड एज पेंशन या इंटरेस्ट। राइट इन द कमेंट योर आंसर्स। ओके, सो सेकेंड, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंक्लूड, जो सेंटर है इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, उसमें क्या इंक्लूड होता है? लिविंग, अर्निंग, स्पेंडिंग या ऑल ऑफ दीज। ओके, सेक्शन बी, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। Embassies of a country abroad is a part of its dash territory. जो एम्बेसी है वो आपकी कंट्री की, जैसे मान लो इंडियन एम्बेसी है,
वो वहाँ जाके काम करिए, तो वो किसकी टेरिटरी होगी, किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, वो आपको बताना। सेकेंड, फैक्टर इनकम इज अ डैश कॉन्सेप्ट। तो फैक्टर इनकम कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो हमने जस्ट डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा था, वो लिख देना, फैक्टर इनकम डैश कॉन्सेप्ट। नाउ बोर्ड यूनिट टेस्ट क्वेश्चंस, सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स। अब ये इंपॉर्टेंट है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम के बीच में डिफ्रेंशिएशन बताना है, ठीक है। सेकेंड, डिफाइन द कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाना है, डोमेस्टिक टेरिटरी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये आपको अच्छे से 3 पॉइंट्स में अच्छे से समझाना है, एलैबोरेट करना है। सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप 4 से 5 मार्क्स। हु इज नॉर्मल रेसिडेंट, कौन है नॉर्मल रेसिडेंट, और स्टेट अ कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। नॉर्मल रेसिडेंट हम किसे कहते हैं, और इस एक कंडीशन बताओ, मतलब कंडीशन बताओ कि क्या नॉर्मल रेसिडेंट को क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि जिससे वो नॉर्मल रेसिडेंट यहाँ का बने, वो बताओ। एक्सप्लेन दी इन क्या लिखा है, वेट फॉर अ मिनट, इंक्लूजन्स एंड अच्छा, इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी विद एग्जाम्पल। जो एक्सक्लूजन्स हैं जो नहीं होने चाहिए, और जो इंक्लूजन्स हैं जो वहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए, तो वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी में वो सब आपको बताना है, ठीक है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। It's not, yeah. So this is the answer, unit test answer key. Okay, so thank you, stay connected, keep learning, and don't forget to like, share, subscribe my channel. So next lecture on classification of goods, final and intermediate. So bye everyone, love you all, bye bye, stay connected, keep learning.